السلام علیکم ناظرین، کشمیر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ بھارت بند کا جموں کشمیر میں بھی دیکھا گیا زبردست اثر۔ ٹریڈ یونینز کا احتجاج، ملازمین مزدوروں کے مطالبات پورے کرنے حکومت پر کیا زور۔ سری نگر کے باغ چوک میں گرینیڈ دھماکہ، فورسز نے حملہ آوروں کی تلاش کا کیا آغاز۔ عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ اور سیاسی محروسین کو رہا کیا جائے، نیشنل کانفرنس کے اجلاس سے اکبر لون کا خطاب۔ وادی کشمیر اور پیر پنچال میں برف باری کا سلسلہ جاری، عام زندگی متاثر، قومی شاہراہ بند۔ بارامولہ میں انٹرنیٹ سینٹر پر لوگوں کی طویل قطاریں، سہولیات ناکافی، انٹرنیٹ خدمات فوری طور پر بحال کی جائیں، طلباء و اساتذہ کا حکومت سے مطالبہ۔ یہ تھی سرخیاں اور اب خبروں کی تفصیل۔ بدھ کے روز ملک بھر میں بھارت بند کی کال کا کئی ایک ریاستوں میں زبردست اثر دیکھا گیا، جبکہ بعض ریاستوں میں ملے جلے اثرات دیکھے گئے۔ 8 جنوری بدھ کے روز CITU سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کی جانب سے بھارت بند کی کال دی گئی تھی۔ حکومت کے معاشی اور سرکاری ملازمین سے متعلق پالیسیز کی مخالفت میں اور اپنے 12 نکاتی مطالبات کی یکسوئی پر زور دیتے ہوئے 10 ٹریڈ یونینز نے مشترکہ طور پر 8 جنوری کو بھارت بند کی کال دی تھی۔ بند اور ہڑتال میں تقریباً 25 کروڑ افراد نے حصہ لیا۔ بینکس، ٹرانسپورٹ شعبے کے بشمول دیگر شعبے جات پر بند کا کافی اثر دیکھا گیا۔ ملک کی تمام بڑے شہروں میں بازار بند رکھے گئے۔ ٹریڈ یونینز کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ واضح رہے، CITU کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے ملحقہ یونین ہے جس نے بھارت بند کی کال دی تھی۔ یونین کے مطابق ملک بھر کے 25 کروڑ ورکرز قومی سطح پر بھارت بند ہڑتال میں حصہ لیا۔ واضح رہے، 10 قومی ٹریڈ یونینز نے متحدہ طور پر بھارت بند اور ہڑتال کی کال دی تھی۔ حکومت کی جانب سے سرمایہ کاری روک دیے جانے، مختلف شعبے و محکمہ جات کو خانگی کر دینے کے بشمول مزدوروں کے لیے اصلاحاتی پالیسیز کی مخالفت میں بھارت بند کی کال دی گئی تھی۔ ان یونینز نے 12 نکاتی چارٹر پر مشتمل اپنے مطالبات رکھے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سال 2015 میں ان نکات پر حکومت نے مختلف تیقنات کیے تھے۔ تقریباً 4 برس گزر جانے کے بعد بھی اس پر کوئی عمل آوری نہیں کی گئی۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے پرانی پنشن اسکیم کے نفاذ کے مطالبے کے ساتھ بدھ کے روز بھارت بند اور ہڑتال میں تقریباً 25 کروڑ ملازمین نے حصہ لیا۔ محکمہ توانائی کے ملازمین اور انجینئرز نے ملک گیر ہڑتال کرتے ہوئے کئی ایک مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس ہڑتال میں محکمہ بجلی کے ملازم یونینز نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی بجلی ترمیمی بل کی منظوری کے ساتھ ساتھ حکومت کی خانگیانہ پالیسیوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا۔ آل انڈیا انجینئرز فیڈریشن نے کہا ہے کہ بجلی محکمے کے ملازمین اور انجینئرز کی ہڑتال کو ملک گیر پیمانے پر ہر ریاست سے بہت ہی زبردست رد عمل ملا ہے۔ بند اور ہڑتال کا زبردست اثر دیکھا گیا۔ ہڑتال میں شریک ہونے والے زیادہ ملازمین و انجینئرز کی تعداد اتر پردیش، کیرلا، تلنگانہ، اڑیسہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کرناٹک، اتراکھنڈ، ہریانہ، پنجاب، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹر، آسام، بہار، جھارکھنڈ اور تریپورہ ریاستوں سے تھا۔ یونین کا کہنا ہے کہ الیکٹریسٹی ایکٹ 2003 میں مجوزہ ترمیم اور نیشنل ٹیرف پالیسی عام صارف کے مفاد کے خلاف ہے۔ مجوزہ ترمیم عوام مخالف ہے اور اس سے صرف خانگی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا اور وہ نفع بخش صارفین کے مفاد کا ہی تحفظ ہوگا، جبکہ چھوٹے اور غریب صارفین بری طرح متاثر ہوں گے۔ اسمارٹ میٹر لگائے جانے کی تجویز ایک بڑے اسکیم کی مشق ہے۔ آج بھی متعدد ترقی یافتہ ممالک میں نارمل میٹر بغیر کسی دقت کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یونین کے ذمہ دار شری دوبے کے مطابق اسی کے تحت ریاستی ریگولیٹر کمیشن کا کردار محدود ہو کر رہ جائے گا اور اسے نئے ترمیم کے تحت نیشنل ٹیرف پالیسی کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے خانگیانہ کی
के लिए कोई हुक्मनामा लाने की कोशिश की तो मुलाजमीन बगैर किसी पेशगी नोटिस के हड़ताल और सख्त एहतजाज का आगाज करेंगे। वाज़रे भारत बंद के नतीजे में आज मुल्क भर में आम जिंदगी और सरकारी दफातर में कामकाज बुरी तरह मुतासिर रहा। भारत बंद का असर जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस JKCCTU ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। ऑल इंडिया नेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी रियासती सदर मोहम्मद मकबूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार की पॉलिसियों ने सरकारी मुलाजमीन, खानगी सेक्टर्स में काम करने वाले मुलाजमीन और अवाम के हुकूक को बुरी तरह मजरूह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत बंद और हड़ताल में मुल्क के बेशतर शोबेजात और किसान तंजीमों की भी तायद हासिल रही। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो वर्किंग क्लास लोगों के साथ इंसाफ पर मबनी पॉलिसीज को इख्तियार करे। उन्होंने मौजूदा और साबिक हुकूमतों की पॉलिसीज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हर तरफ खानगियाना का माहौल बना दिया गया है। 45 बरस कबल के बेरोजगारी की सूरत हाल आज बच चुकी है। मीडिया से हजरात का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने यहाँ हमारी गुजारिश को कबूल करके यहाँ तशरीफ़ लाया। जैसा आपको मालूम है कि आज सारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ के करीब सरकारी, नीम सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर, मेहनतकश सारे, इंक्लूडिंग किसानों की भी हिमायत है, इसमें हड़ताल पर जा रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में आप बखूबी वाकिफ़ है, इसलिए यहाँ हमने एक अभी कन्वेंशन करने का फ़ैसला किया है। बाद में थोड़ा सा प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन आज हम इस दिन के हवाले से जो वर्किंग क्लास के जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे आज हैं इस स्ट्राइक में, उसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। जैसा आपको मालूम है कि पिछले 20-30 साल से कांग्रेस के द्वारा और उसके बाद मोदी जी की सरकार के द्वारा जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक एंड एंटी वर्किंग क्लास पॉलिसीज़ अपनाई गई, इसके तबाहकुन असरात हमारे इकोनॉमी पर, हमारे आम लोगों पर और पर्टिकुलरली वर्किंग क्लास पर पड़ रहे हैं। GDP ग्रोथ लगातार कम हो रही है, प्राइस एस्केलेशन बढ़ रहा है, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस है, अनएम्प्लॉयड 45 साल पहले जो अनएम्प्लॉयड रेट थी वो आज हमें दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिया जा रहा है और वर्किंग क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त जब हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर को खोटे दामों बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट की जा रही है, सरकारी अदारों में कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के द्वारा परमानेंट जॉब्स को फ्रीज करके, ख़त्म करके अभी टेम्पररी जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं। और हमारा सबसे बड़ा सरकारी कर्मचारियों का सोशल सिक्योरिटी नेट जो था, जिसको हम बोलते हैं पेंशन, वो आज ख़त्म किया जा रहा है। 2006 से और हमारी रियासत में 2010 से पेंशन बिल लागू करके हमारे इस बुनियादी एक बड़े राइट को धीरे धीरे हमसे छीना जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बैंकों के द्वारा 8 लाख करोड़ रुपए वर्चुअली माफ किए जा रहे हैं सिर्फ पिछले बजट्स में। और खासकर अभी वेल्थ टैक्स को और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स को और मुख्तलिफ मराद के जरिए 1,04,000 करोड़ रुपया जो सालाना हमारे रेवेन्यू पर असर पड़ रहा है, और तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया उनको एक या दूसरे तरीके से उनको मराद छूट, टैक्स में छूट दी गई। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का ज्वाइंट, जिसमें सरकार, एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस का ज्वाइंट फैसला है कि 18,000 रुपये मिनिमम वेज होनी चाहिए, और कहीं उसको लागू नहीं किया जा रहा है। लेबर राइट्स पर धीरे धीरे अमेंड किया जा रहा है लेबर राइट्स को, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, उससे इनकार किया जा रहा है।
تو یہ چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورکنگ کلاس پر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے آج سارے ہندوستان میں لوگ سٹرگل پر ہیں, سڑکوں پر آ رہے ہیں. ہر سیکٹر میں کہیں نہ کہیں جدوجہد ہے. جہاں جموں کشمیر کی بات, بھارت بند اور ٹریڈ یونین ہڑتال میں آج آشا ورکرز نے بھی حصہ لیا. انہوں نے مودی سرکار کی پالیسیز کو ملازم دشمن عوام دشمن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں معیشت تباہی کے دہانے پہنچ گئی ہے اور موجودہ سرکار جمہوریت مخالف پالیسیز کو اپناتے ہوئے ملک کی معیشت کو مزید تباہ کر رہی. سرکار و غیر سرکاری شعبہ جات کے لیے کام کرنے والے ملازمین کے حقوق پامال کیے جا رہے. چھوٹی اور درمیانی تاجرین اور عام انسان بھی پریشان ہے. مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں آنگن واڑی ورکرز, آشا ورکرز, عارضی ملازمین کی تنخواہیں کئی مہینوں سے ادا نہیں کی گئی ہیں. ان سے کیے گئے وعدے فراموش کر دیے گئے. خدمات پر مستقل کرنے اور دیگر جائز مطالبات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. چوتھے زمرے کے تحت خدمات انجام دینے والے آشا ورکرز, آنگن واڑی ورکرز سخت مالی مشکلات سے دوچار ہیں. جے اینڈ کے رضاکار ریٹائرڈ ایس آر ٹی سی ملازمین یونین نے ان کی وظیفہ جاری کرنے کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. ریٹائرڈ وظیفہ یابوں کی یونین نے بھارت بند اور ٹریڈ یونینز کی ہڑتال اور احتجاج میں آج حصہ لیا. آج کا جو ہمارا پروٹیسٹ تھا, آج کا جو ہمارا ڈیمانسٹریشن تھا, آج ہم پیسفلی ریلی لے کر ایک سیکٹریٹ کی طرف کوچ کر رہے تھے. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے, سرکار نے ہماری آواز دبانے کی, جبکہ ہمارے ساتھ لیڈیز ہے ہی کوئی نہیں. ہماری سرکار سے یہ مانگ ہے کہ ہماری جو پینٹنگ لائبلٹی ہے, جس میں کاسٹ آف لیونگ الاؤنس کولا افیکٹ فرام 1999 اینڈ 6 پے کمیشن ایریئر افیکٹ فرام 1 جنوری 2006 اینڈ کارپوریشن بینیفٹ, ہم سینٹرل گورنمنٹ سے یہ مانگ کرتے ہیں. اب یو ٹی بن چکی ہے. یو ٹی کے قانون کے مطابق جس طرح اتراکھنڈ کارپوریشن کو بینیفٹ ملتے ہیں, جس طرح ہماچل پردیش کو بینیفٹ ملتے ہیں, جس طرح دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ریٹائر بینیفٹ ملتے ہیں, وہ ہم پہ بھی لاگو کیے جائیں. نیشنل کانفرنس نے اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت کو بحال نہ کرنے تک وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی. سری نگر کے نوائے صبح میں واقع نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر پر منعقدہ پارٹی اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے این سی کے رکن پارلیمان محمد اکبر لو نے یہ اعلان کیا. سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کے خاتمے کے چیلنج پر دائر کردہ درخواست سے اپنی مثبت امید کا اکبر لو نے اظہار کیا. اس موقع پر ان سے سید الطاف بخاری کی سربراہی نئی قیادت سے متعلق پوچھے گئے سوال پر اکبر لو نے کہا کہ 1953 سے بعض عناصر کو حکومت ہند کی جانب سے استعمال کیا جاتا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کے جذبات اور احساسات کو دبایا جا سکے.
मुझे बताओ ज़रा, आपसे मेरा सवाल होगा, आप मुझे बताओ, मैं रिज़ाइन करता हूँ, अभी रिज़ाइन करूँगा, क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा मुझे? मेरी पार्टी को क्या मिलेगा? मेरी लीडरशिप, क्या आप मेरी लीडरशिप को रिहा करने जा रहे हैं? क्या आप मेरे रिज़ाइन करने के बाद यहाँ पर आवाम को वो सहूलियत दे देंगे जो जिनका हम तज़किरा करते हैं? क्या वो बात हम कर सकते हैं जो हम इस वक्त पार्लियामेंट में कर सकते हैं? क्या वो बात हम इस्तीफा देने के बाद कर सकते हैं? वो बात भी नहीं करी आपने जी, पार्लियामेंट में, तो वो बात भी नहीं करी आपने। नहीं भाई, आप शायद आपने उन चीज़ों को नहीं, आप पार्लियामेंट से रिकॉर्ड लाइए और वो रिकॉर्ड लाइए और उसमें देख लीजिएगा तकरीबन 3-4 बार हमने और लोगों के हमरा पार्लियामेंट के अंदर अच्छी खासा प्रोटेस्ट किया और आपको नहीं नज़रों से गुजरा होगा, लिहाजा हमने प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन जो बात वहाँ कहनी थी वो बात हमने वहाँ पर डट के वो बात कही। डोमिसाइल लॉ की बात की जाती है कि यहाँ पर डोमिसाइल लॉ दिया जाएगा। देखिए यहाँ नहीं, कुछ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही मकसद है, हमारी पार्टी जिसको शेर कश्मीर शेख मुहम्मद की सरबराही रही है और उसके मिशन पर हम चल रहे हैं, वही हमारा आगे का मिशन होगा। हमारा कोई और ये डोमिसाइल वगैरह ये जो आपको लगता है ये वही लोग करते हैं जो यहाँ पर कभी अपने आप को बहसीत लीडर के उभारना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। अगर डोमिसाइल लॉ दिया जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? हम उसको थूकेंगे भी नहीं, और क्या चाहिए आप? सर, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 370 का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम इंशाल्लाह अच्छा खासा हमने वक्त से पहले ही उसमें सबसे पहले हमने ही रिट दायर की हुई है और रिट चल रही है और उस पर फैसला आना किसी भी वक्त मुतवक्का है। जब भी आ जाएगा इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक में होगा। अगर इन फ्यूचर इलेक्शन होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल नॉट पार्टिसिपेट हम जब तक 5 अगस्त वाली बात, 5 अगस्त का स्टेटस हमें फिर से नहीं मिलेगा, हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं करेंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ। पीडीपी लीडर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वक्त आ गया है कि दफा 370 से आगे बढ़कर काम किया जाए। अल्ताफ बुखारी ने एक खबरसा इदारे से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए दफा 370 से आगे बढ़कर दीगर मौके की तलाश की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि दफा 370 के खात्मे की तकलीफ को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हमको इस दर्द से बाहर निकलना होगा। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, हमें इन चीजों के लिए कोशिश करनी होगी जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं। श्रीनगर के बाग चौक इलाके में नामालूम अफराद की जानिब से सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका गया। हमले के बाद फौरी तौर पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुकम्मल घेराव कर लिया और मुश्तबा अस्करी पसंदों की तलाश शुरू कर दी गई। धमाके के बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी देखी गई, ताहम इस धमाके में 2 आम अफराद को मुबैना तौर पर हल्के जख्म आए हैं। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये काला कानून है, ये एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। ये लड़ाई सीएए की एनआरसी की सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। इसको बचा लो, वरना तुम इसको नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। जो लोग अभी भी खामोश बैठकर तमाशा देख रहे, मैं उनसे कह रहा हूं कि याद रखो, हिंदुस्तान की तारीख में जंग आजादी के बाद आज एक ऐसा मोड़ आया है कि तारीख तुमको याद रखेगी जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज किया। ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರು, ನಾವು ಹಿಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳು.
আমরা ভারত নিবাসী। અમે ભારતના લોકો છે. અમે ભારતાचे लोक. We the people of India. અમે ભારત કમાની शुरू. हम भारत की आवाम. আমরা ভারতের জনগণ। हम भारत के लोग. मेरे देश की तमाम जनता से अपील है, आप भारत का ये प्रियम्बल, ये संगीत को पढ़िए, इसका वीडियो बनाइए और उसके नीचे लिखिए कि मेरा संविधान। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि मोदी जी इस कानून को वापस लो, इस देश को बचाओ। एक वीडियो बनाकर 26 जनवरी तक करोड़ों की तादाद में इस वीडियो को पूरे यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर डालिए, मेरे भाई का आप ये काम करेंगे। क्या आप मेरा संविधान के नाम पर 1 मिनट का वीडियो बनाकर डालेंगे? CAA, NRC और NPR हम भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पहल पर हम मौजूदा सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम भारतीय अपने संविधान से प्यार करते हैं, भले ही सरकार ना करते हैं। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पढ़ते हुए आपके और आपके दोस्तों का एक वीडियो रिकॉर्ड करें, अपने 3 दोस्तों को टैग करें और इसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #मेरा संविधान के साथ अपलोड करें। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेजों पर भी आपको अपनी मातृभाषा में प्रस्तावना मिल जाएगी। वीडियो में अपना और अपने शहर का नाम बताना ना भूलें। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। 4 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के लिए एक और गैर मुल्की वफ्द दौरा करेगा। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के सफरा का वफ्द 9 जनवरी को हुकूमत की दावत पर जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। दौरे में फौज की जानिब से उनको कश्मीर की सूरत हाल से वाकिफ कराया जाएगा। बताया गया है कि ये 2 रोज़ा दौरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, आसियान, यूरोपीय यूनियन और लातिन अमेरिका के सफरा पर मुश्तमिल होगा। चार माह बाद आखिरकार ये खबर सामने आ गई है कि असीबुल अल्ताफ मराजी से CRPF से बचने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़त्म कर दिए जाने के बाद असीब अपने दीगर दोस्तों के हमरा फोर्सेस के साथ एक झड़प के दौरान बच निकलने की कोशिश करते हुए श्रीनगर में दरियाए जहलम में डूब गया था। ख्याल रहे असीब वो पहला नौजवान है जिसकी दफा 370 के खात्मे के बाद पहले सिविलियन की मौत से मुतल्लिक इंकशाफ सामने आया। ताहम पुलिस ने असीब की हलाकत से मुतल्लिक रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक तहरीरी दरख्वास्त भी दायर की। सोलह साल नौजवान की पुलिस की एक मुबैना तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से हुई मौत के खिलाफ नौगाम में आज मुसलसल दूसरे दिन भी हड़ताल रही। ख्याल रहे 7 जनवरी को नौगाम में स्कूल जाते वक्त 16 साल तहसीन नजीर टक्कर के नतीजे में जा बहक हो गया था। ताहम आज पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ये एक हादसा था।
ضلع گاندربل کے واکورہ علاقے میں مقامی لوگوں نے ڈگری کالج کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، پوری کرو۔ علاقہ ترقی خاطر کام کران کیونکہ جس ڈیولپمنٹ کونسل واکورہ یہ رود ہر ہمیشہ ڈگری کالج خاطر ڈیمانڈ کران اور اس ڈیمانڈ کو اعلیٰ حکام تک پہنچ ہماری گزارش ہے کہ اس وقت ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو۔ یہ تقریباً 30-40 دیہات پر مشتمل ہے اور اس علاقے کے لیے سرکار نے حال ہی میں جولائی کے مہینے میں سرکار نے یہاں پر نئے 16 ڈگری کالج کیے۔ ہم سرکار کے انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بھی، ہمارے واکورہ کے لیے بھی ایک ڈگری کالج کا منظوری دی۔ اس کے لیے ہم سرکار کا انتہائی مشکور ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ سننے میں باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ سرکار یہاں سے دور وہ کسی علاقے میں یہاں پر یہ ڈگری کالج قائم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس یہاں پر سینکڑوں کنال اراضی اسٹیٹ لینڈ ہے جس کے لیے جو کہ کافی حد تک موزون ہے اور ڈگری کالج بننے کے لیے کافی موافق لینڈ ہے۔ اس کے لیے ہم نے لینڈ یہاں پر مہیا کی ہے۔ ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈگری کالج واکورہ میں ہی قائم ہونا چاہیے، تاکہ کے لیے ہم نے ریسنٹلی ہم ڈویژنل کمشنر صاحب سے بھی ملے، انہوں نے ہمارے ساتھ نہایت ہی خوشگوار ماحول میں میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں یقین دیا ہے کہ واکورہ میں ہی ڈگری کالج قائم کیا جائے گا۔ علاقہ واکورہ یہ گاندربل پہ ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر پہ تقریباً 17-18 کلومیٹر دور سنس یتھ گامس من پرائمری سکول بنیامت تمہ وقت یم وقت ہری سنگھ حکومت یہ تقریباً 1927 برونٹ لگ بھگ توتام آزاد گھنا یہ ہندوستان پاکستان یم سات یہ پرائمری سکول بنیامت بیس تک زیادہ کھت زیادہ گاندربلس مز پرائمری سکول بیس حاجنس مز پرائمری سکول باقی یس علاقس مز کن جائے کھانا پرائمری سکول کیونکہ اس یہ واکورہ یہ سینٹر پوزیشن ات آمت قرار دن یہ اند پت قریباً 7 گام یم زن یور تعلیم حاصل کرنے خاطر پتہ بنیو یہ وار وار بنیو یہ پتہ ہائی سکولس مز تقریباً 7-6 گامن ہند لڑکہ یور پرنے خاطر یمو زن تعلیم یہ حاصل کر مگر اتہ پہ ووت ہتھے گزارش کران گورنمنٹس کہ اس گوس یہ ڈگری کالج گوس یہ بن ڈگری کالج اس زن یہ سینکشن کورمت گورنمنٹن تو سہ گھس قائم گھن یہ ووکرسی من کیونکہ یم سات زن یہ سینکشن گو ساری خوش کرم یہ علاقہ سوری خوش کرم نوجوان خوش کرم مگر سری نگر کے ٹیگور ہال کو سنیما تھیٹر میں تبدیل کرنے کے مبینہ حکومتی منصوبے کے خلاف آج سری نگر میں مختلف فنون سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے حکومتی منصوبے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اس سے سبکدوشی کا مطالبہ کیا۔ جو کلچرل اکیڈمی کا جو آفس ہے یا جو کہ ہمارا کہ تھیٹر کا جو ہب ہے یہاں پر جو کہ عرف عام میں ٹیگور ہال کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں تک یہاں کی کلچرل آئیڈینٹی کا تعلق ہے، جہاں تک یہاں کی کلچرل شناخت اور ثقافتی شناخت کا تعلق ہے، پرفارمنگ آرٹس کی تاریخ کا تعلق ہے، اس نے ہمیشہ یہاں کے جو پرفارمنگ آرٹسٹس ہے اور یہاں کی کلچرل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں ایک بہت زبردست رول نبھایا ہے۔ اب سننے میں یہ آیا ہے ویدر کہ اٹ از اے ریومر اور اٹ از اے نیوز، اٹ ہیز ناٹ یٹ کنفرم، لیکن ایک چیز ہے جو تشویش کی لہر فریٹرنیٹی میں جو کلچرل فریٹرنیٹی ہے، جو آرٹسٹک فریٹرنیٹی ہے، ان میں یہ ہے کہ یہ جو پریزنٹ جو ڈسپنسیشن ہے یہ ٹیگر ہال کو سنیما گھر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہ سنیما کے خلاف نہیں ہے، اٹ از اے سیپریٹ آرٹ فارم، اٹ از این انڈیجینیس آرٹ فارم، تو ہم اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہے
कि यहाँ के जो एबेंडन्ड थिएटर्स ऑलरेडी जो मतलब कि सिनेमा घर थे उनको वो रिवाइव भी कर सकते हैं, उनको वो रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं अगर उनको इस आर्ट फन के मतलब कि तई गवर्नमेंट को मतलब कि अगर इतनी सेंसिटिविटी दिखानी है। लेकिन जहाँ तक मतलब कि थिएटर का ताल्लुक है, ये हमारा सिर्फ एक ही ऐसा मरकज़ है जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को हमारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। तो मैं अपनी मतलब कि फ्रेटर्निटी की ओर से ये एक बहुत ही सेंसिटिव कल्चरल इशू है। अगर ये गवर्नमेंट के पास ऐसा है कोई प्लान तो मैं मतलब कि उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्लान को अबेंडन कर दे इन द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द कल्चरल फ्रेटर्निटी ऑफ कश्मीर। निसार नसीम, मैं जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज की ये मीटिंग हम इसलिए यहाँ मुनक़िद कर रहे हैं, इसमें हम एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं। अभी जो हमने किया है वो हम ड्यू काम को भी दे देंगे, सेक्रेटरी कल्चर को भी दे देंगे और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी भेज रहे हैं। हम उनसे मोतबाना गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा कोई डिसीजन है उसे फ़ौरन रिवोक किया जाए और सिनेमाज के लिए कहीं और जगह रखी जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज दिल्ली की JNU के तलबा से इजहार यकजहती करते हुए एहतजाज किया। तलबा ने JNU कैंपस पर मुबैना ABVP के हमले की सख्त मजम्मत की और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, मेरा नाम अली शाह है और मैं लेह से बिलोंग करता हूँ और ये आज हम प्रेस क्लब के अंदर AISF स्टूडेंट ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो संडे को जो ब्रूटल अटैक हुआ JNU स्टूडेंट्स के ऊपर दिल्ली के अंदर, और हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं सर। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस ब्रूटल अटैक में, इस कॉन्स्पिरेसी में, इनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दिलानी चाहिए ताकि हम आने वाले जनरेशन को एक सेफ नेशन दे सके जहाँ पे ये चीज़ें ना हो, और हम ये इंश्योर करें कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री। और बाकी देशों के अंदर हमारी इसी की वजह से इमेज जो है वो ख़राब हो गया है और टूरिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, आने वाले टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ऐसे चीज़ें हो रहा है जो हमने हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा, जो कि नहीं होना चाहिए था। होम मिनिस्ट्री को पुलिस के द्वारा और जितने भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है इनके द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है सर। थैंक यू सो मच सर। वादी कश्मीर, पीर पंचाल और जम्मू में कहीं बर्फबारी तो कहीं ताज़ा बारिशों ने इन खित्तों में आम जिंदगी को मुतासर कर दिया है। बिलखुसूस कश्मीर और पीर पंचाल के कई एक हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान ताज़ा बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि मौसम 11 जनवरी तक खुश्क रहेगा। 12 और 13 जनवरी को मौसम में तब्दीली रोनुमा हो सकती है। रात की औकात दर्जे हरारत में बेहतरी रोनुमा हो सकती है। ख्याल रहे ताज़ा बर्फबारी के बाद शुमाली कश्मीर और वसत कश्मीर के कई एक हिस्सों में बर्फ की सफ़ेद चादर देखी गई।
दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ महदूद होकर रह गई थी, वहीं गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में साबिक मेंबरान असम्बली, जिनकी तादाद 8 बताई जा रही है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। ख़ास कर बात ये थी कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, लोगों को एतमाद में लिया जाए, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से जो शक शुबहात है वो दूर किए जाए। अब देखना यह है कि ये मुलाकात क्या एक नई सियासी हलचल है या कुछ और, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। दूसरी जानिब हब्बक श्रीनगर में आज फिर ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हुआ। सिक्योरिटी की जो भारी तादाद है वो इलाके में पहुँचाई गई और जो हमलावर है उसकी तलाश जारी है। ताहम शहर श्रीनगर में इस तरह के हमलों के बाद जो है दीगर जो अहम मुकामात है वहाँ सिक्योरिटी में इजाफा किया जा रहा है। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। उधर रामबन बानिहाल के दरमियान से गुजरने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को दोबारा बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में सड़क के दोनों ही जानिब सैकड़ों गाड़ियां रुकी हुई हैं। वहीं ताज़ा बर्फबारी के बाद यहां रेल खदमात भी मुतासिर हैं। ताहम बताया गया है कि रेल खदमात को बहाल कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से बारिशें और बर्फबारी की वजह से जहां जम्मू कश्मीर में आम लोगों को मुश्किलात का सामना था, वहीं जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों और माल बरदार गाड़ियों को भी मुश्किलात दरपेश रहे। जिस दौरान रामबन बानिहाल के दरमियान कई मकामात पर भारी पस्सियाँ गिर आई, जिनमें डिगडोल, बैटरी चश्मा, पैंथाल, मोमपसी जैसे मकामात शामिल थे। ताहम अगरचे हुकाम की जानिब से इन मकामात पर पस्सियाँ हटाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जवाहर टनल के दोनों अतराफ भारी बर्फबारी थी, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक हुकाम को जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू चलते ट्रैफिक को बंद करना पड़ा, जो करीब 20 घंटे तक मुअत्तल रही। हालांकि अगरचे आज सुबह से मौसम में बेहतरी देखने को मिली और कौमी शाहरा पर काम जोरों से चलाया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी राहत मुसाफिरों को तब मिली जब बानिहाल बारामूला रेल सर्विस को 20 घंटे के बाद चालू किया गया, जिस रेल सर्विस से हज़ारों की तादाद में मुसाफिरों ने अपनी मंजिलों की तरफ रुख किया। उम्मीद करते हैं कि मौसम साजगार हो और कौमी शाहरा पर दरमंदा मुसाफिरों को अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया जाए, और ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्द कौमी शाहरा बहाल और माल बरदार गाड़ियों को भी अब कौमी शाहरा पर चलने की इजाज़त मिले। रामबन से 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। ईरान ने इराक में वाक़े अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर बुध की सुबह मिसाइल हमले किए, जिनमें 80 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। कौमी मीडिया ने ईरानी फ़ौज की एक सीनियर अफसर के हवाले से बुध को बताया कि ऐनुल असद फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी फ़ौज के मिसाइल हमले में कम से कम 80 अमरीकी फ़ौजी एहलकार हलाक हुए हैं। उसने बताया कि अमरीकी हेलीकॉप्टर और फ़ौजी साजो सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इससे कबल ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा था कि ईरान ने अपनी फ़ौजी सलाहियत का सिर्फ एक मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अमरीका ईरान का सामना करने के लिए कोई दीगर रुख अपनाए। वाज़ेह है कि ईरान ने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए इराक में अमेरिका के ज़र क़यादत सिक्योरिटी फोर्सेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। अमेरिकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने इन हमलों की तस्दीक की है। पेंटागन ने एक मुकामी वक्त बताया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियान शब ईरान ने अमरीकी फ़ौज और इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। ये वाज़ेह है कि ईरान ने इराक के आइन अल असद और अरबिल में अमरीकी फ़ौज और इत्तेहादी अफवाज की कम से कम 2 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया।
पेंटागन ने कहा है कि वो खत्ते में तैनात अपने जवानों, साथियों और इत्तेहादी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। इससे कबल व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इराक़ के हालात पर करीब से नज़र रखे हुए हैं और कौमी सलामती कमेटी के साथ मशावरत कर रहे। गुज़िश्ता जुमे को अमेरिका के ड्रोन रॉकेट हमले में ईरान के पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी के अल-क़ुद्स फोर्स के सरबराह जनरल क़ासिम सुलेमानी मारे जाने के बाद से ही पूरे खलीजी खित्ते में कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले सुलेमानी की मौत का इंतकाम बताया जा रहा। इराक में अमेरिका के 5000 से ज्यादा फौजी तैनात हैं, जिन्हें निशाना बनाकर ईरान ने यह हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने बुध के रोज कम से आए हजारों अफराद के इज्तिमा से खिताब किया। यह खिताब 9 जनवरी 1956 में शहर क़म में होने वाले अवामी क़याम की सालगिरह की आमद पर अंजाम पाया। रहबर इन्क़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह आज़मी सईद अली खामेनेई ने शजाअत, बसीरत और रहकुदा में इखलास को शहीद जनरल क़ासिम सुलेमानी की मुमताज़ ख़ुसूसियात में शुमार किया है। रहबर इन्क़िलाब इस्लामी ने अपने इस खिताब में जनरल क़ासिम सुलेमानी की ख़ुसूसियात का जिक्र किया और कहा कि उनकी एक ख़ुसूसियत ये थी कि वो शुजा भी थे और साहिब बसीरत वो तदब्बर भी थे। उन्होंने अमरीकी ठिकाने को निशाना बनाए जाने को अमरीका के मुंह पर महज एक तमाचा करार दिया। अंजुमन इमामिया जम्मू के रहनुमा व तज्जियाकार सोहेल काज़मी ने अमरीकी ठिकानों पर ईरानी हमले पर अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि अमरीका को चाहिए कि वो इराक से निकल जाए। उन्होंने कहा है कि सारी मुस्लिम दुनिया को चाहिए कि वो मुत्तहिदा हो जाए ताकि साम्राज्यवाद को पीछे धकेला जा सके। और अमेरिका को खासकर ये जो इस वक्त के प्रेजेंट सदर है वहाँ के ट्रंप साहब, उनको अपनी रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है। आज पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड जो है उनको इस इंसिडेंट की मजम्मत कर रहा है और मैं समझता हूँ एक ऐसे सभ्य मुल्क में अटैक करना विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ यूएन और कोई भी किसी तरह की रेजोल्यूशन को ना मानते हुए एक डिक्टोरल पॉलिटिक्स जो पहले इराक के साथ बाकी ममालिक के साथ करते रहे और आज की 2020 की एज में उन्होंने जो ईरान में किया है, इसका खमियाजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा और अमेरिका जो है वो अमेरिका की तरह बिहेव ना करे। जिस तरह से सुलेमानी की हलाकत के बाद दुनिया भर में एहतजाजों का सिलसिला जारी है, अब जंग के खतरात मंडरा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त क्या मिडिल ईस्ट के लोगों को करना चाहिए? इन हालातों में आप अपील क्या करना मैं अपील करता हूं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को कि एकदम इकट्ठे हो जाएं और ऐसे मुल्क को और ऐसे सदर को दुनिया से रफा दफा कर दें तो ताकि इस तरह के जो हुक्मरान हैं वो दूसरी बार जन्म ही ना लें इस धरती पे। और अमेरिका को खासकर ये जो इस वक्त के प्रेजेंट सदर है वहाँ के ट्रंप साहब, उनको अपनी रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है। आज पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड जो है उनको इस इंसिडेंट की मजम्मत कर रहा है और मैं समझता हूँ एक ऐसे सभ्य मुल्क में अटैक करना। उधर कुपवाड़ा में शदीद बर्फबारी के बाद भी बिजली की तरसीली की फराहमी और दीगर इंतजामात पर मुकामी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। ये बड़ा सिंपल है, जितने हमारी पोर्शन और मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारी रेस्टोरेशन एजेंसीज काम पर हैं, चाहे वो मैकेनिकल और R&B की रोड क्लीनेस मशीन्स हों, चाहे पार्ट डिपार्टमेंट की रेस्टोरेशंस हों, और धीरे धीरे करके हर जगह रेस्टोरेशन वापस पहुंचा रहे हैं हम। जो मेजर रोड्स हैं सारी की सारी वो तीनों दिन थ्रू रही हैं। इनफैक्ट जो प्रायोरिटी 1 एरियाज जिनको हम कहते हैं वो सारे कनेक्टेड रहे हैं। लिंक रोड्स पर डेफिनेटली कुछ इश्यूज हैं क्लियरेंसेस के, जिसके ऊपर अभी आज काम चल रहा है और सब्जेक्ट टू थोड़ा वेदर क्लियरेंस आज शाम तक हमें उम्मीद है कि 80% से ज़्यादा जो लिंक रोड्स हैं उन पर क्लियर हो जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली बॉर्डर रोड्स के ऊपर भी हमारे कल से, इनफैक्ट परसों से ही बॉर्डर रोड्स ब्लॉक्ड हैं, उनके ऊपर भी एवलांच वार्निंग के मद्देनजर रखते हुए काम थोड़ा लेट से ही शुरू हो पाया है। पर हम उम्मीद करते हैं कि अगर वेदर थोड़ा क्लियर रहता है तो कल शाम तक हम एटलीस्ट 3 में से 2 बॉर्डर रोड्स को थ्रू करेंगे। और पावर रेस्टोरेशन के हवाले से भी सब ट्रांसमिशन से मेरी कल शाम भी इनफैक्ट डेली बेसिस पे रिव्यू रहता है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेशंस अप हैं। कल हंदवाड़ा के पुराने फीडर में कुछ दिक्कत आई थी।
बाकी होकर हंदवाड़ा में बुनियादी सहूलियात न होने पर मुकामी बाशिंदों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया और मसाइल हल करने हुकाम से मुतालबा किया। मैं बताऊं आपको कि इस वक्त हम जो 2020 में हम आए हैं, अभी भी ये गांव, ये इसी गांव की बात नहीं, लेकिन फिलहाल मैं अपने गांव की बात बताऊं कि बुनियादी सहूलियतों से भी महरूम है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो एक पुल है, पिछले 3 सालों से ज़ेर तामीर है। पुल तो सारा नहीं बनाना था, इसमें जो एक अबैटमेंट है सैलाब की वजह से, जो पिछली दफ़ा वो जो 2014 में मेरे ख्याल से जो वो सैलाब था, उसकी वजह से इसका जो एक अबैटमेंट था वो पानी के साथ बह गया। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट था हमारा, जो R&B डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक इस पे काम शुरू किया था। अबैटमेंट तो बना लेकिन पुल कभी नहीं, अभी भी ये पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही इसी हालत में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये जो गाँव है ये तकरीबन इसको हॉर्टिकल्चर गांव भी कहा जाता है, और बेशतर जो लोग हैं वो इस मेवा सन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब यहाँ पे इनको जो ट्रांसपोर्टेशन, जो इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है मेवे को, कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ता होगा, आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और दूसरा ये कि आज विंटर्स में आप गाड़ी मुश्किल से क्रॉस कर सकती है यहाँ पे, पिछले 4 सालों से ये पेंडिंग है। उसके बाद बिजली का निज़ाम ये तो है नहीं, लेकिन अब हमने फैसला कर दिया कि जो बिजली के खंभे हैं और जो आपके कंडक्टर्स हैं, इनको हमने उखाड़ फेंकना है और इनको डिपार्टमेंट के हवाले कर देंगे कि हमें ज़रूरत ही नहीं, चाहिए ही नहीं है। तो क्या अपील करना चाहते हो आप? अब कितनी बार अपीलें करें हम? मुतल्लिका हुकाम से हमने 12 हम वहाँ पर गए, उन्होंने हमने कहा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों की वसातत से आखिरी दफ़ा हम ये मुतल्लिका हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हमारा ये बिजली का निज़ाम ठीक नहीं होता है, हमने ये तय कर लिया इतने सारे जो गाँव हैं कि उधर बारामूला में इंटरनेट मराकज़ पर लोगों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। यहाँ तलबा ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इंटरनेट खदमात को बहाल करें ताकि उन्हें दरपेश मसाइल दूर हो सके। इसी दौरान कश्मीर के मारूफ मदरस व रिटायर्ड अहदेदार गुलाम हुसैन तालिब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तलबा को दरपेश मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। जी सर, हम बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप के फार्म भरने थे, लेकिन यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिने चुने इंटरनेट के मराकज़ कायम किए गए हैं। हम हुकूमत वक्त से और हुकूमत बाला से अपील करते हैं कि बारामूला के कहीं और इलाकों में इंटरनेट सहूलियत का मराकज़ कायम किया जाए ताकि तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप फार्म भरने के लिए आसानी हो जाए। यही हमारी अक़वामी वक़्त और अक़वामी आला से गुजारिश है। गवर्नर साहब से भी यही गुजारिश है कि बारामूला में बहुत 2-3 जगह और कई जगहों पर इंटरनेट मराकज़ कायम किया जाए, तो यही हमारी गुजारिश। ये हम यहाँ आए हैं 4-5 दिन हमें हुए यहाँ पे, हमें स्कॉलरशिप फार्म भरना था, जिस फार्म को हमें 2 मिनट लगते थे, आज इसको तकरीबन 10-20 दिन हमें लगते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ आप देखिए कितनी बड़ी लाइन है, ये ऊपर है, ऊपर जो तीसरा फ्लोर है वहाँ पे इतने भीड़ है, कोई कहने की बात नहीं। यहाँ पे क्यों आए हैं? आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में ये सुबह से बच्चे आए हुए हैं, इस वक्त 2:30 बज गए और अभी तक इन बच्चियों को टाइम नहीं मिलता है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। इनके वालिदीन शाम को परेशान हो जाते हैं जब ये शाम के अंधेरे में घर पहुँचते हैं। सरकार इंटरनेट ताकि दूर दराज उड़ी पे टंगमर्ग पे बाबा ऋषि पे योर बची सेहत तमस परेशान हाल ये रश अगर प्रत जाए हम हेकान कर बहुत गवर्नर साहबस अपील करान मीडिया की वसात सहित अगर तम प्रत जाए ब्लाकन मज तहसीलन पे नेट खोलहन अति ग सान दूर दराज इलाकन में ग सान बच्चे तहसील हेड क्वार्टर्स पे ब्लाकस पे आन उड़ी पे बारामूला पे बाबा ऋषि पे
सहूलियत थी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब ये ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता। हमारे दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग जब किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी इम्तहान के लिए, ख़ासकर नीट और दूसरे मुकाबला जाती इम्तहानों के लिए जब वो कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जब उस तक रसाई नहीं होती है, इससे हमारी एक इमीडिएट रसाई होती थी हमारे स्टूडेंट्स की। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसका जो असर था पूरे जितने भी हमारे बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ से जो हमारे नौजवान जो तालीम पढ़ना चाहते हैं या मुलाजिमतों में जाना चाहते हैं या IAS, IPS, IFS या KS करना चाहते हैं, उनको मालूमाती प्रोग्राम मिलते थे। और ये मालूमात जो है, मालूमात बहम पहुँचाना, ये एक हक है, बुनियादी हक है, आईनी हक है, और मैं समझता हूँ स्टूडेंट उस तक ये पहुँच जाना चाहिए। अभी हाल ही में जो अब मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है जो आने वाला है, कितनी परेशानियां हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए कि और बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए कि उन्हें कब रिज़ल्ट इमीडिएटली मिल जाए ताकि वो नई क्लासों में दाखिला ले सके, उसमें भी बड़ी परेशानियां हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टडी मटेरियल है जो हमारे बच्चों तक पहुंचता है, जो दूर दराज इलाकों की हमारी तालिबात और तालिब इल्म होते हैं, हमारे लड़के और लड़कियां होती हैं, उन तक वो स्टडी मटेरियल पहुंच जाना अब दूर की बात है। अब उनके लिए मुश्किलात है, ये उनसे दूर होता जा रहा है। मैं समझता हूँ इस बदलती दुनिया में इस चीज़ को बंद करना, इस पर कदगन लगाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और तालीमी मैदान में हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला है, हमारी यूनिवर्सिटियों का मुकाबला है। क्या हमारी कश्मीर की यूनिवर्सिटी या जम्मू की यूनिवर्सिटी, कैसे हम दूसरी यूनिवर्सिटियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं जब हमें यहाँ इस चीज़ का सिस्टम चालू न रहे, ये बंद रहे तो कितनी परेशानी है। इसके साथ ही हमारा जो ये प्रीपेड का जो फ़ोन है उसके बंद रहने से भी बहुत सारे खदशात पैदा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को पूरी तौर पर स्टूडेंट्स कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, उनकी दिलचस्पी के लिए और यहाँ के उन दूर दराज और पिछले इलाकों के बच्चों के लिए इसे फिर फ़ौरन से पेशतर इसको चालू करना चाहिए ताकि हम तालीम के मैदान में दूसरी स्टेटों के साथ और दूसरे ममालिक के साथ बल्कि पूरे ग्लोबली हम मुकाबला कर सकें। फिलहाल बस इतना ही। कश्मीर न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।